Jai Hind, all my dear students. So today we are going to start our new topic, that is embryonic development, right? So previously we have completed the topic of fertilization, right? We have learned the events in fertilization. Now we are going to learn about the embryonic development. Now the embryonic development, the mitotic division start as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called the cleavage towards uterus, right? So they are telling the mitotic division will start, right? First there is a fusion between a sperm, right? First there is a fusion between a sperm and a ovum, and finally it will convert into zygote, and zygote is diploid, and after that the mitotic division will occur, right? The mitotic division starts as the zygote moves towards the isthmus. So the zygote will move towards the isthmus of the oviduct or fallopian tube. It is known as cleavage, right? It is and towards the uterus. Now it forms 2-celled stage, 4-celled stage, 8-celled stage, and the 16 daughter cells called the blastomeres. So these are known as the blastomeres, right? These cells, 2-celled blastomere, 4-celled blastomere, right? Then embryo with 8 to 16 blastomeres is called morula, राइट? जो एम्ब्रियो होगा जो कितना होगा 8 से 16 सेल्ड स्टेज, 8 to 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड द मॉर्यूलर स्टेज. आई विल शो इन द डायग्राम ऑल्सो, ठीक है? मैं डायग्राम में भी आपको ये दिखाऊंगा, ठीक है? आई विल शो इन द डायग्राम. फिर मॉर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू blastocyst. So morula, it will divide continuously, right? It will divide continuously to divide and transforms into what it will form, blastocyst, as it moves further into uterus, so that it will move further into the uterus. Clear? Then the blastomere in the blastocyst, right? The blastomere in the blastocyst are arranged into outer layer called the trophoblast. So the blastomeres, they will arranged, right? The जो blastomere जो cells जो बन रही blastomere जो cells हैं, ठीक? The blastomeres in the blastocyst are arranged into outer layer called the trophoblast, right? The outer layer को क्या नाम दे दिया इन्होंने? Trophoblast नाम दे दिया, right? Trophoblast. And inner group of cells attached to the trophoblast is called the inner cell mass, right? तो यहाँ पर बाहर वाली जो लेयर होगी वो क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है, और जो उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? इनर सेल मास हमें देखने को मिल रहा है. क्लियर? फिर ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम. जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो किससे अटैच्ड हो गई? वो एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो गई. एंड इनर सेल मास डिफरेंशिएट एज द एम्ब्रियो, और जो इनर सेल मास होगी वो कैसे डिफरेंशिएट होगी? वो एम्ब्रियो, राइट? नाउ आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट. वो किसको कवर कर लेगा? वो ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा, राइट? सो आफ्टर द अटैचमेंट uterine cells, they will divide, right? They will divide and rapidly it will covers the blastocyst, right? Blastocyst. Then blastocyst embedded in the endometrium, और जो blastocyst है वो कहाँ embedded हो जाएगी? वो endometrium में, right? So the blastocyst embedded in the endometrium of the uterus. Clear? दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है इसको क्या कहते हैं हम लोग? इम्प्लांटेशन. एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, राइट? इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी. जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ एम्बेडेड हो गया? वो
एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। एंडोमेट्रियम किसकी, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज द इम्प्लांटेशन, right, and it leads to the pregnancy. You will see this is the diploid cell, zygote, right, this is the polar bodies, 2n nucleus. It will undergo mitosis, right, first cleavage, first division will start, right, first cleavage कब होगी, right, 30 hours, ठीक है, zygote के बनने के 30 घंटे के बाद 30 hours, right, first division, two celled stage. These two cells are known as the blastomeres, right, blastomeres. After that 4 celled stage, राइट, 4 celled stage हमें देखने को मिल रही है, ये 4 ब्लास्टोमियर्स हैं, तो ये कब बनेगी, ये 40 आवर्स के बाद में। देन 8 celled stage, राइट, 8 celled stage, तो 8 celled stage कब बन रही है यहाँ पर, थर्ड डे 72 आवर्स के बाद में, ठीक है, 72 आवर्स के बाद में, राइट, थर्ड डे पर। देन यू आर एबल टू सी इट क्लियरली, 16 celled stage it will form at the fourth day, right, 16 celled stage it will form at the fourth day. So you are able to see it clearly, right, this is the zona pellucida, this is the zygote, this is the 2n, right, diploid cell, this is the nucleus, right, it will undergo mitosis, cleavage is there, and you will see these are the 2 blastomeres. You will see 2 celled stage, then 4 celled stage it will form after 40 hours, then after that 8 celled stage, then third day it will comes, third day nearly 72 hours. Then you will see it here clearly, it is known as the 16 celled stage. 16 celled stage, 16 celled stage, solid ball like, right, it is known as a solid ball like, and it is like little mulberry, ठीक है, mulberry क्या कहते हैं, शहतूत जो होता है उसकी तरह ही इसकी शेप देखने को मिलेगी। तो 16 celled stage होगी वो, it looks like a solid ball like structure like a mulberry reach the uterus. Clear? Now you are able to see the diagram. NCERT में डायग्राम नहीं है तो प्लीज़ ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, ठीक है, ये देखिए आप लोग, ये ट्रोफोब्लास्ट एक कवर है, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट कवर है। फिर ये इनर सेल मास है, इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट, ये जोना पेलुसिडा है, ये टूट जाएगी बाहर, क्लियर, टूट जाएगी। ये कैविटी है ब्लास्टोसील कैविटी, राइट, ब्लास्टोसील कैविटी। और ये स्टेज है कौन सी है, ये 64 सेल्ड स्टेज, कौन सी है ये 64 सेल्ड स्टेज है, राइट। सो ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला, इट विल इम्प्लांट इन द यूट्रस, राइट। सो इम्प्लांटेशन इट अकर्स इन द 7th डे, तो कब होगा ये, 7वें दिन होगा, राइट। नाउ आई विल शो यू इन द NCERT, ठीक है, NCERT में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, NCERT में भी डायग्राम दिखा रखा है, ठीक। ट्रांसपोर्ट ऑफ द ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फैलोपियन ट्यूब, राइट। ये देखिए आप लोग, ये डिप्लॉइड जाइगोट, सॉरी ये ओवम, सेकेंडरी ओसाइट, ये स्पर्म ने फ्यूज करा, ब्लास्टोमियर 2 celled स्टेज, 4 celled स्टेज, देन मोरुला, ठीक है, मोरुला CDE FGH, राइट, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन होगा, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा ये वाला, क्लियर। देन यू आर एबल टू सी इट, ये देखिए, समझ में आया बात। तो ये ओवरी है, ओवरी से एग, ये देखिए ये जो इवेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पर पहले यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ओवरी है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, यहाँ से सेकेंडरी ओसाइट बाहर आया, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट विल रिलीज एंड यू विल सी इट क्लियरली हियर द सेकेंडरी ओसाइट। आफ्टर दैट स्पर्म, ठीक है, स्पर्म ने क्या करा, एक स्पर्म ने इसको फ्यूज कर दिया, बहुत सारे थे। देन 2 celled स्टेज, 4 celled स्टेज, देन 8 celled स्टेज, ऐसे क्या करते करते 64 celled स्टेज, राइट। देन फाइनली इट विल एम्बेडेड इन द यूट्रस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। क्लियर हो गया आपको, ठीक है, क्लियर हुआ जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये सारी चीज़ पढ़ी जाती हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्या क्या हमने देखा यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमने पढ़ा, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस। तो जाइगोट वो कहाँ गया, वो इस्थमस की तरफ गया, ठीक है, इस्थमस की तरफ ऑफ द ओविडक्ट
called the cleavage. It is known as the cleavage towards the uterus. It forms 2, 4, 8, 16 daughter cells and these are known as the blastomeres. और उनको क्या नाम दे दिया हमने? blastomeres का नाम दे दिया, right? Embryo with 8 to 16 blastomeres is called the morula और उसको क्या नाम दे दिया हमने? morula नाम दे दिया. Clear? Then the morula continues to divide. morula लगातार डिवाइड करेगा, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू, किस में कन्वर्ट हो गया वो? ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस. क्लियर? देन द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट, the blastomere in the blastocyst are arranged into outer layer called the trophoblast. Now the outer layer is known as the trophoblast and the inner group of cells attached to the trophoblast is called inner cell mass. और जो अंदर वाली सेल्स हैं जो उसके साथ अटैच्ड हैं ट्रोफोब्लास्ट से, उसे क्या नाम दे दिया हमने? इनर सेल मास, ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं उसको, इनर सेल मास. The trophoblast layer attached to the endometrium. जो trophoblast layer है वो किससे अटैच्ड होगी? वो endometrium से अटैच हुई हो. एंड इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट, और जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट हुई एज द एम्ब्रियो. आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल्स डिवाइड. जो यूट्रस की सेल से क्या करेगी? वो डिवाइड करेगी रैपिडली, लगातार, और किसको कवर कर लेगी? वो ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर एक कवर सा क्रिएट कर देगी. क्लियर? देन ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम. जो ब्लास्टोसिस्ट है कहाँ एम्बेडेड है? वो एंडोमेट्रियम में ऑफ द यूट्रस. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. इसको हमने क्या नाम दे दिया? इम्प्लांटेशन नाम दे दिया. एंड इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी, राइट? एंड इट विल लीड्स टू द प्रेगनेंसी. फाइनली देन यू विल सी द डायग्राम्स. इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी बनाने के लिए है, ठीक, कॉन्सेप्ट को क्लियर बनाने के लिए. ये डिप्लॉइड सेल है, जाइगोट है, बाहर वाली लेयर जोना पेलिसुडा है, ये पोलर बॉडीज है. यहाँ पर माइटोसिस हुआ, यहाँ पर पहला क्लीवेज हुआ, फर्स्ट डिवीजन हुआ, यहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज बनी. 2 सेल्ड स्टेज को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है, इट इज़ नोन एज ब्लास्टोमियर्स. इट विल फॉर्म आफ्टर 30 आवर्स, ठीक है, 30 घंटे के बाद बनेगी. फिर उसके 40 आवर्स के बाद में क्या बन रही है? 4 सेल्ड स्टेज है, 4 सेल्ड स्टेज. देन 4 सेल्ड के बाद 8 सेल्ड स्टेज, ठीक है, डायग्राम थोड़े रफ से है लेकिन फिर भी समझने के लिए जरूरी है. 4 सेल्ड 8 सेल्ड स्टेज, थर्ड डे, नियरली 72 आवर्स. देन दिस इज द 16 सेल्ड स्टेज. इट विल कम्स एट द 4th डे. तो ये कब बन रही है? यहाँ पर 4th डे पर ये बन रही है. क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, 16 सेल्ड स्टेज कब है? यहाँ पर 4th डे. फिर 16 सेल्ड स्टेज है वो किसकी तरह अपीयर होगी? वो, ठीक है, किसकी तरह लगेगी? वो सॉलिड बॉल लाइक की तरह लगेगी, लाइक लिटिल मलबरी, ठीक है, मलबरी की तरह वो अपीयर नजर आएगी. रीचेस द यूट्रस, और वो यूट्रस की तरफ पहुंच जाएगी, ठीक है, यूट्रस की तरफ पहुंच जाएगी. क्लियर? तो ये हमने देखा यहाँ पर. फिर और इसके अलावा जो कि देखिए ये डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है, डायग्राम है. ये इनर सेल मास, ठीक है, ये इनर सेल मास है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है. जब ये यूट्रस के पास पहुँच गया, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये कवर है, यहाँ ये ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक, ट्रोफोब्लास्ट है. ये जोना पेलिसुडा है, ये टूटने लग जाएगा. ये कैविटी है, ब्लास्टोसील कैविटी, और ये 64 सेल्ड स्टेज है. कौन सी है? ये 64 सेल्ड स्टेज है. ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला, इट विल इम्प्लांट इन द यूट्रस एंड द इम्प्लांटेशन इट अकर्स इन द 7th डे इन यूट्रस. तो इम्प्लांटेशन कब हो रहा है? यहाँ पर 7th डे हो रहा है, ठीक है, 7वें दिन हो रहा है. क्लियर? ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट है. ट्रोफोब्लास्ट को हम लोग ट्रोफोडर्म भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ये ट्रोफोडर्म भी कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है. ट्रोफोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोफोडर्म भी कहते हैं, ठीक है, ट्रोफोडर्म. और ये और ये क्या प्रोवाइडर? न्यूट्रिशनल प्रोवाइडर का काम करती है, ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रोवाइडर का काम करती है. क्लियर? डायग्राम क्लियर हुए, ठीक है, डायग्राम क्लियर हुए आपको, ठीक है. और इसके अलावा जो क्लीवेज कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ये क्लीवेज अकर्स ओनली अकर्स इन द जाइगोट. और जो क्लीवेज होगा वो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? वो जाइगोट में देखने को मिलेगा.
I hope now the concept is clear to each and everyone how the implantation will takes place and what are the important diagrams. हमने NCERT के डायग्राम्स भी देखे हैं, ठीक है ना, NCERT के डायग्राम भी हमने देखे हैं किस तरीके से वो उसमें इवेंट्स घट रहे हैं, ठीक है, A B, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये सेकेंडरी साइड, देन फ्यूज करा इस पर हमने, ठीक है, फिर ये क्या हुआ, इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ, क्लीवेज स्टार्ट हुआ, 2 सेल्ड स्टेज बना, 4 सेल्ड स्टेज बना, मॉड्यूला बना, इम्प्लांट हुआ यूट्रस के अंदर, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको ड्रॉ करना है, सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं जो हो रहे हैं।